بلیٹن کے آغاز میں بڑی خبر شامل کریں گے۔ کراچی کی مردم شماری پر ایم کیو ایم پاکستان ڈٹ گئی ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے مردم شماری پر تحفظات پھر دہرا دیے، بولے کہ مردم شماری ہماری ڈیڈ لائن ہے۔ ایم کیو ایم نے وفاقی وزراء اور اراکین اسمبلی سے استعفے طلب کر لیے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شعیب مختار کی اس رپورٹ میں۔ ایک بار پھر حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے پر تولنے لگی۔ بہادرآباد مرکز پر کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں بڑے فیصلے کر لیے گئے۔ اجلاس میں ایم کیو ایم کے متعدد اراکین اسمبلی کی جانب سے اپنے استعفے پارٹی قیادت کو جمع کرا دیے گئے۔ رابطہ کمیٹی کا کہنا تھا کہ ادارہ شماریات کی جانب سے درست تعداد و شمار نہیں پیش کیے جا رہے ہیں۔ کراچی کی آبادی کو سازش کے تحت کم دکھایا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کا کہنا تھا کہ درست مردم شماری نہیں ہوگی تو ہمارا اسمبلیوں میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شہری سندھ خصوصاً کراچی کے ساتھ مردم شماری میں ہونے والی زیادتیوں کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اجلاس میں سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار، نسرین جلیل، ڈپٹی کنوینر انیس قائم خانی، عبدالوسیم، کیف الورا و دیگر بھی موجود تھے۔ شعیب مختار، سٹی 21۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے اجلاس نے سیاسی حلقوں میں کھلبلی پیدا کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں ایم کیو ایم کے تمام تر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کا وفد کل اسلام آباد میں وزیر اعظم اور وفاقی وزراء سے ملے گا۔ متحدہ سے خالد مقبول صدیقی، امین الحق اور فاروق ستار شامل ہوں گے۔ ایم کیو ایم وفد وزیر اعظم کو مردم شماری سے متعلق اپنے تحفظات سے آگاہ کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے مردم شماری کے معاملے پر ایم کیو ایم کو حکومت چھوڑنے کا مشورہ دے دیا۔ 1 مئی کو احتجاج کا بھی اعلان کیا۔ پی ٹی آئی کراچی کے صدر آفتاب صدیقی بولے کہ لاڑکانہ شکارپور کی آبادی بڑھ گئی تو کراچی کی آبادی کیسے کم ہو گئی؟ کراچی کی الٹی گنتی کو تحریک انصاف نے مسترد کر دیا۔ انصاف ہاؤس میں پی ٹی آئی کراچی کے صدر آفتاب صدیقی نے جنرل سیکرٹری کراچی ارسلان تاج شہزاد قریشی کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ آفتاب صدیقی نے کہا کہ کراچی کے مردم شماری پر آواز اٹھانا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ مردم شماری میں کراچی میں 1 کروڑ 38 لاکھ افراد گنے گئے۔ 1997 2017 میں بھی مردم شماری غلط ہوئی۔ اس معاملے پر جماعت اسلامی سے بھی بات کی ہے۔ کراچی کی جو الٹی گنتی ہوئی ہے، لاسٹ پریس کانفرنس میں نے اور ارسلان نے جو کی تھی، 1 کروڑ 60 لاکھ کی جگہ 1 کروڑ 38 لاکھ کا نمبر آیا تھا۔ یہ گنتی صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ 97 میں نہیں ہوئی، 2017 میں نہیں ہوئی تو 2023 میں کیسی ہو جائے گی؟ کراچی کی ہر پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں گے، ماں سوائے ان کے جو گورنمنٹ میں شامل ہیں۔ ہم نے جماعت اسلامی سے بھی بات کی ہے کیونکہ یہ مشترکہ ہمارا مسئلہ ہے کراچی کا۔ ارسلان تاج کا کہنا تھا کہ کیسے ممکن ہے کراچی کی آبادی کم جبکہ لاڑکانہ کی بڑھ جائے۔ کسی ایک طبقے کی نہیں، ہر طبقے کی بات کر رہے ہیں۔ حکومت کراچی کو حق نہیں دینا چاہتی۔ صوبائی اسمبلی کی 4 اور قومی اسمبلی کی 2 نشستیں کم کر دی گئی ہیں۔ کراچی کے عوام کو دھاندلی منظور نہیں، ہر جماعت سے بات ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی سمجھا دے کہ کس طرح 25% لاڑکانہ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں 2.5% کراچی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ تو اس کے بالکل کم ہو جائیں گی، 4 سیٹیں اس وجہ سے، 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں کم ہو جائیں گی ہماری کراچی سے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا کہ 1 مئی کو حیدری پر احتجاج ہوگا۔ ٹاؤن کی سطح پر بھی مظاہرے ہوں گے۔ 2 تاریخ کو مردم شماری پر سیمینار رکھا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے سفاری پارک میں ہاتھیوں کی افزائش کی نوید سنا دی۔ سیف الرحمان کہتے ہیں کہ سفاری پارک میں جانوروں کو بہترین سہولیات فراہم کریں گے۔ مدھوبالا کے کل مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے سفاری پارک میں ہاتھیوں کی افزائش کی نوید سنا دی ہے۔ سیف الرحمان کہتے ہیں سفاری پارک میں جانوروں کو بہترین سہولیات فراہم کریں گے۔ مدھوبالا کے کل مختلف ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ مدھوبالا کو شفٹ کرنا ہے۔ مدھوبالا کی کل اسکریننگ ہو گئی اور مدھوبالا کو شفٹ کرنا کراچی زوالوجیکل اینڈ بوٹنیکل گارڈن سے سفاری پارک ایک بڑا اپ اینڈ ٹاسک ہے۔ ظاہر ہے 2 ٹن کا بگ ایلیفینٹ ہے، وہ اس کو موو کرنا کنٹینر کے اندر، یہ اس کے لیے جرمن ہم نے ٹرینر 4 پاس کا آلریڈی وہ آئے ہوئے ہیں، وہ اس کو ٹرین بھی کریں گے ساری چیزیں، اور پھر انشاءاللہ 1 آدھ مہینے میں
ये हो जाएगा। देखिए सफारी पार्क 1970 में बना, 207 एकड़ पे जगह पे मुहित है। 105 एकड़ बिल्कुल जानवरों के लिए जंगली एहतियात के लिए रखा है। हम चाहते हैं कि एक आलमी सतह की यहाँ पे सेंचुरी बनाई जाए। सेंचुरी से मुराद ये कि जहाँ पे जानवर अपनी नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहीं पे उनकी अफजाइश नस्ल होती है और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो किसी जंगल के अंदर है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे कुछ जगह ईयर मार्क्ड ऑलरेडी की है, जो कि 10 से 12 एकड़ के करीब होगी। उस पर फेंसिंग होगी, लोग यहाँ गुजरते हुए हाथी को देख सकेंगे। यानी हाथी अपने आप को ऐसा तस्वुर करते हैं कि जैसे किसी जंगल में। सफारी पार्क के आप दोनों हाथी देखिए, वो बिल्कुल दरख्तों के से घास, पानी, ये तमाम चीज़ें होंगी। तो इंशाल्लाह एक बहुत ही शानदार प्लान है जिस पर अमल किया जाए। कि उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि जो कराची ज़ूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन के जो हाथी हैं, दोनों को शिफ्ट किया जाए यहाँ पे, ताकि वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नूरजहाँ की तबीयत कुछ नासाज हुई और फिर उसका इंतकाल भी हो गया इसी बजे 11:15 बजे। तो उसके बाद अब मधुबाला को हम शिफ्ट भी कर रहे हैं, और जब शिफ्ट कर रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ा यहाँ पे सेंचुरी को बना रहे हैं, जहाँ पे न सिर्फ ये 3 हाथी बल्कि और हाथी भी रहेंगे। ये हम मज़ीद इंशाअल्लाह ताला और लेकर भी आएंगे। हम जो एशियन एलिफेंट्स हैं, अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, वो हम लेकर आएंगे, इससे कि ये बहुत बड़ी जगह होगी और उनके रहने के लिए एक बिल्कुल जंगल होगा ये। बल्दे उस्मा कराची के महकमे ज़ू में तकर्रियाँ सामने आ गई, जहाँ मोहम्मद अहमद असिस्टेंट डायरेक्टर चार्ज पार्किंग की खिदमात महकमे ज़ू के सुपुर्द कर दी गई हैं। सुलेमान सजाद वीडियोग्राफर की खिदमात भी महकमे ज़ू के सुपुर्द की गई हैं। दोनों मुलाजमीन को महकमे ज़ू की ज़रूरत के तहत तैनात किया गया। दोनों तकर्रियाँ बल्दिया उस्मा कराची की मिजाज अथॉरिटी की मंजूरी से अमल में आई हैं। नाज़रीन, कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में पानी नायाब हो गया। हुकाम की नाअहली के सबब बच्चे अपनी जानों को खतरे में डालकर वाटर बोर्ड के टैंक में नहाने लगे। जुनैद जावेद की रिपोर्ट। बच्चे नहाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालने लगे। घर के नलकों में पानी नहीं आता तो क्या हुआ? ख्वाजा अजमेर नगरी के बच्चों ने वाटर बोर्ड के पंपिंग स्टेशन के टैंक को स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया। अजमेर नगरी के मकीन कहते हैं इलाके में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। 15 से 20 दिन में एक मरतबा पानी आता है। पानी की सप्लाई जो है वैसे तो 8 दिन में आ जानी चाहिए, लेकिन 8 दिन में नहीं आती है। बिकॉज सप्लाई जो कल बंद हुई है वो 17 दिन के बाद या 18 दिन के बाद आई है। तो ये घरों में वैसे पानी की बहुत तंगी हो रही है, ठीक है, और हफ्ते में 1 दिन पानी आता है। जैसे भी गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है ना, ये पानी नहीं आएगा अभी। ये बच्चों ने पानी की किल्लत के बायस वाटर बोर्ड के टैंक में नहाना मजबूरी करार दे दिया। घर में पानी नहीं आता इसलिए नहाने आते। हमारे घर पे पानी नहीं आता ना, हम लोग इसलिए यहीं नहाते आते। वाटर बोर्ड के पंपिंग स्टेशन की 4 दीवारी भी गायब हो गई। सिक्योरिटी का इंतजाम ना होने से कोई भी हादसा रोनुमा हो सकता है। कैमरामैन अजमल खान के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21। शहरियों के लिए अच्छी खबर है, अब सस्ती एलपीजी मैसर होगी। एसएसजीसी ने शहर में एलपीजी सिलेंडर की फरोख्त शुरू कर दी है। जहां ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत पर एलपीजी भी फरोख्त हो रही है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। महंगी और गैर मयारी एलपीजी से छुटकारा हासिल करने का वक्त आ गया। एसएसजीसी ने ओगरा के तय करदा रेट पर एलपीजी फराहम करना शुरू कर दी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 2702 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 10,397 रुपए और एलपीजी भी 229 रुपए में फरोख्त की जा रही है। रीजनल मैनेजर एसएसजीसी फैसिलिटेशन सेंटर सलाउद्दीन का कहना है कि हमारे पास 6,500 का टर्मिनल है। सेफ्टी के तमाम मराहिल और ऑर्डर लेने के बाद 24 घंटे के अंदर सार्फिन को घर तक डिलीवरी करते हैं। हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ा टर्मिनल है 6,500 मेट्रिक टन का। हमारे पास अपने जहाज़ आते हैं जो कि हमारे जेटी पे लगते हैं और वहाँ पर बड़े सेफली तरीके से हमारे वहाँ पर डिकेंटेशन होती है, हमारा प्रोडक्ट आता है और वहाँ से फिर सिलेंडर्स और बाउजर्स के ज़रिए हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवरीज दे रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि शहर में फ़रोख्त होने वाले गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखें, उन्होंने जो मार्केट कैटर की हुई है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कैटर हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा टर्मिनल है, पर यह है कि वो सिस्टम में घुस चुके हैं। अब उनको हम लोग गवर्नमेंट ही कर सकती है, हमारी तरफ से तो कोई भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करे तो वो ख़त्म हो सकते हैं। दूसरी जानिब एलपीजी माफिया की गुंडागर्दी के बाइस शहरी महंगी एलपीजी खरीद रहे हैं। कैमरामैन हैदर के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। नाज़रीन, हसन स्क्वायर पर सड़क धंस गई। खुला हुआ गड्ढा शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। इंतजामिया और हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी पर शहरी हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं कि कराची पूरे मुल्क की मईशत को चलाता है, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं।
हसन स्क्वायर पर सड़क धंस गई। सड़क के बीचों बीच खुला गड्ढा इंतजामिया और हुकूमत की नाकिस कारकर्दगियों का सबूत पेश करने लगा। शहरी कहते हैं कराची की मुतादिद सड़कों और शाहराहों की यही सूरत हाल है। सड़कें खस्ता हाल हैं और स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं। पूरे पाकिस्तान की मईशत को चलाने वाला कराची खुद बेआसरा हो चुका है। 12 से 15 दिन हो गए हैं, इसको कोई भी देखने नहीं आया है। ये तो एक गड्ढा है, आपको मैं पीछे 200 गड्ढे और दिखा दूँ। कराची में रोड नहीं है गड्ढों के अलावा भाई, कराची में गड्ढे ही गड्ढे हैं। रोड कौन सा साफ है, समझा दे मुझे आप। कोई रोड साफ नहीं है इधर, एक रोड तो साफ वो भी अभी गड्ढा बंद होगा तो देखिएगा हाल क्या होगा। ये बांस लगाया हुआ बीच में, कोई गाड़ी गिर जाए, कोई हादसा हो जाए, मतलब जब कोई हादसा होता है ना जब भी लोग जागते हैं। इसके अलावा आपके सामने ही है कैमरामैन, आप आपको दिखाएं ये लोगों का हाल देखें। 80 लाख रुपए की, 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ, लोग बेचारे क्या करें, गुजरना यहीं से पड़ता है लोगों को। शहरियों का मुतालबा है कि सड़कों की सूरत हाल को दुरुस्त किया जाए। कैमरामैन जहांगीर खान के हमरा शहरियार सिद्दीकी, सिटी 21। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साबिक चेयरमैन हसन बख्शी ने ईद पर अहले वतन को दिली ईद मुबारकबाद का पैगाम दिया। हसन बख्शी ने कहा कि महंगाई की सूरत हाल से आवाम शदीद परेशान है। उन्होंने कहा कि महंगी बिजली और डॉलर की वजह से हर शय की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है। तमाम सियासी जमातें बैठकर इस सियासी गैर यकीनी सूरत हाल का हल निकालें। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साबिक चेयरमैन हसन बख्शी की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। हसन बख्शी ने कहा कि रमजानुल मुबारक में सबने मिलकर जरूरतमंदों की बढ़ चढ़ कर मदद की। महंगाई की वजह से आवाम की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। उन्होंने अपने पैगाम में मजीद कहा कि हम सबको ईद के बाद भी जरूरतमंदों की मदद जारी रखनी चाहिए। इस साल जिस तरह ईद गुजरी है आपके हमारे सब लोगों के इल्म में है, पर जिन लोगों ने फिलैंथ्रोफी का और चैरिटी का काम किया है मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उन इदारों को भी, उन इंडिविजुअल्स को भी। और मैं ये समझता हूँ कि उनको आते वक्त दौर में भी ये काम करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक डिफ़िकल्ट हालात से गुजर रहा है। साबिक चेयरमैन आबाद ने कहा कि मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं है और महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। इस ईद पर पिछले साल के मुकाबले में 40% कारोबार कम हुआ। मुल्क में जारी सियासी सूरत-ए-हाल की वजह से कारोबार शदीद मुतासिर हुआ। सरमायाकार सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल की वजह से सरमायाकारी नहीं कर रहा। हम जैसे सुनते हैं लोगों से कि इस साल सेल ईद पे 40% भी नहीं हुई जो हमेशा रहती थी, हालांकि हर साल 10, 15, 20% बढ़ती थी। पिछले साल के आज 40% भी सेल अचीव नहीं हुई। लोगों ने स्टॉक लिया हुआ था, लोग परेशान रहे। महंगाई का ये आलम है कि लोगों की कीमतें ख़रीद कम से कम होती जा रही है। साबिक चेयरमैन आबाद ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियां मिल बैठकर इस सियासी बहरान का हल निकालें। मुल्क मौजूदा सूरत हाल को किसी सूरत मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक नायब चेयरमैन हाजी गनी उस्मान ने तमाम अहले वतन को ईद की खुशियों का पैगाम दिया। हाजी उस्मान गनी ने कहा कि मुआशी और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल पर सरमायाकार खौफज़दा हैं। सियासी बहरान के खात्मे के साथ अब बुलंद शरह सूद भी बड़ा मसला बन गया, जिसकी वजह से सरमायाकारी नहीं हो रही। तमाम अहले वतन को ईद उल फितर की खुशियां मुबारक हो। ये पैगाम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक नायब चेयरमैन हाजी गनी उस्मान ने दिया। हाजी गनी उस्मान ने कहा कि माशी मुश्किलात की वजह से ये ईद बहुत ही क्राइसिस वाली ईद रही। बताया कि पूरे रमजान के एक माह में 100 इंडेक्स में 631 पॉइंट्स का ही इजाफा हुआ और कहा कि जो मुल्क के माशी हालात हैं उस पर सरमायाकार खौफजदा हैं। ये ईद देखिए, ये ऐसी ईद आई कि ऐसी क्राइसिस की ईद थी और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात, जो भी माशी हालात हो रहे हैं वो आपकी सबकी नज़र में है और दुआ करें कि अल्लाह मियाँ हम सबको इस हालात से पास करे और अच्छे हालात के करीब लेके जाए। हाजी गनी उस्मान ने कहा कि ये पहला साल है कि रमजान में बहुत कम कारोबारी हुजूम रहा। ये भी कहा कि सिर्फ सियासी बहरान खत्म होने से सूरत-ए-हाल ठीक नहीं होगी। साथ दूसरा बड़ा मसला 21% बुलंद शरह सूद बन गया है। कोई ये बताए कर्जे पर 24% सूद के साथ हुकूमत को टैक्स कैसे अदा होंगे। पहला ही ऐसा साल है कि रमज़ान में नो डाउट कि ट्रेडिंग कम होती है, मगर पहला ही साल है कि इस रमज़ान में मेरे ख्याल में 10 रमज़ानें जो निकली थी वो उससे भी कम ट्रेडिंग हुई है। अब पाकिस्तान का हाईएस्ट कैबोर रेट जो 21% पे कैबोर रेट है और 21% पे अगर जो मैं लोन लेता हूँ या कोई और भी लोन लेता है तो डिपेंड अपॉन पार्टी है। किसी को 24% में मिलते हैं, किसी को 23% में मिलते हैं। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि सरमायाकार अखराजात निकाल कर अपने मुनाफे का भी सोचता है और इस बुलंद शरह सूद पर सरमायाकारी के बजाय बैंकों के डिपॉजिट्स में इजाफा ही होगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। शहर कायद में तातील के रोज भी बाजार खुले रहे। ओल्ड सिटी एरिया में जोड़िया बाजार की मेडिसिन मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां जारी रही। काविश विमन की रिपोर्ट। छुट्टियां ज्यादा मिलने पर ताजरों ने तातील खत्म होने से कबल ही मार्केटें खोल दी। जोड़िया बाजार के ताजरों का कहना है कि रमजान में भी हफ्ते में 2 रोज बाजार बंद रहते थे। ईद पर भी छुट्टियां ज्यादा मिल गई। महंगाई उरूज पर है जिसके बायस दुकानें खोली। ये छुट्टियां बहुत हो गई थी तो इस वजह से हमने मामूल भी
के हिसाब से दुकानें खोल ली हैं। अब तो सारी दुकानें खुली हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला कल से और मामूल पे आ जाएंगी। फिर कल सारी दुकानें इंशाअल्लाह ताला खुल जाएंगी, बैंक वगैरह भी खुल जाएंगे। मामूल के मुताबिक दुकानें खोल दी हैं। अभी भी देखा जाए तो काम में वो ज़ोर है नहीं, फिर भी लोगों ने, ताजिर बरादरी ने कुछ मार्केटें खोली हैं क्योंकि आगे छुट्टी का कह रहे हैं, इस वजह से मामूल के मुताबिक कुछ दुकानें खुली हुई हैं। शहर के दीगर इलाकों में भी ईद के चौथे रोज बेशतर तिजारती मराकज़ खुले रहे। कैमरामैन हसनैन के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। और सिंध के वज़रा ने इंकशाफ किया है कि पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील करने की साजिश ऐवान सदर में हुई। शर्जील इनाम मेमन और मुर्तज़ा वहाब ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट आज ही सदर मुमलिकत और इमरान खान के खिलाफ अज़ खुद नोटिस ले। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। सिंध के वुज़रा ने PTI और कप्तान पर तंज के तीर बरसा दिए। ऐवान सदर को साजिशों का गढ़ करार दे दिया। सिंध आर्काइव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इमरान खान ने खुद ही ये राज फाश कर दिया कि पंजाब और KP के असम्बलियाँ उन्होंने साबिक आर्मी चीफ की हिदायत पर तहलील की। बकौल इमरान खान के कि जनरल बाजवा साहब ने कहा इमरान को कि तुम KP के और पंजाब असम्बलियाँ तोड़ दो, और जो शख्स मुसलसल तौर पर ये कह रहा है कि जनरल बाजवा ने उसकी हुकूमत गिराई, पहले तो कहता था कि अमेरिका ने गिराई, फिर आखिर एक नतीजे पे आया कि जनरल बाजवा ने उसकी हुकूमत गिराई, फिर वो उसके मशवरे पे वो खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की हुकूमत डिसॉल्व कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इस मौके पर कहा कि आइन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। अब फैसला करना पड़ेगा कि कानून बनाना किसका इख्तियार है। सियासतदानों और अफसर शाही का रोज एहतसाब होता है, तो जजों का एहतसाब क्यों नहीं होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी होती है, होनी चाहिए, तो क्या अदालतों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या वो 4 जज साहिबान जिन्होंने मुतनाज़ा फ़ैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में दिया था, जिस फैसले के ऊपर एक जज साहब जिन्होंने ख़ुद फ़ैसला दिया था, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, उन्होंने ख़ुद एक TV इंटरव्यू में नहीं कहा कि वो फ़ैसला गलत था? क्या इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? शर्जील इनाम मेमन और मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कारकुन था। मौजूदा जजों को सोचना पड़ेगा, यही शख्स अपने मफाद की खातिर मौजूदा जजों के राज फाश करेगा। कैमरा टीम के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। सुई सदर्न गैस कंपनी ने गैस बिलों में मीटर रेंट के साथ फिक्स चार्जेस की मद में 500 रुपए तक वसूली शुरू कर दी। तर्जुमान सुई सदर्न गैस का कहना है कि ओगरा के नोटिफिकेशन के तहत घरेलू सारिफीन को इन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। नवंबर से फरवरी के दौरान 90 क्यूबिक मीटर्स गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को प्रोटेक्टेड लिस्ट में शामिल किया गया है। नवंबर से फरवरी के दौरान 90 क्यूबिक मीटर से ज़ायद गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन अनप्रोटेक्टेड हैं। ओगरा के नोटिफिकेशन के तहत प्रोटेक्टेड सार्फिन को फिक्स 50 रुपये, जबकि अनप्रोटेक्टेड सार्फिन को 460 रुपये फिक्स चार्जेस अदा करने होंगे। मुकदमात से आगाही के लिए सिंध हाई कोर्ट ने टेक्नोलॉजी में बड़ा इक़दाम उठा लिया। मुकदमात की तफसीलात जानने के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी। जदीद तकाज़ों के पेश नज़र अदालत ने सिंध हाई कोर्ट केस फ्लो मैनेजमेंट वीटो नामी मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाई है, जिसे अब तक 40,000 बार डाउनलोड किया जा चुका है। ऐप के ज़रिए साइलिन, वकला और सरकारी अफसरान अपने मुकदमात की तफसीलात हासिल करेंगे। ऐप में न सिर्फ हाई कोर्ट्स बल्कि सेशन अदालतों का भी मुकम्मल डाटा रखा गया है। और नाज़रीन, महंगाई और जदीद टेक्नोलॉजी ने सड़क किनारे बैठे मजदूरों को तकरीबन बेरोजगार कर दिया। ईद आई और चली गई, लेकिन मजदूर तबके की हालत ताहाल ख़राब है। राबिल अशरफ की रिपोर्ट। लोगों के घर तामीर करने वालों के अपने घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। महंगाई ने जहां तमाम शोबों के लोगों को मुतासर किया है, वहीं मजदूर तबका ज्यादा परेशान नजर आता है। मुआशी दगरगूम सूरत हाल ने मजदूरों से दाल रोटी भी दूर कर दी। काम की आस लगाए फुटपाथों पर सुबह सवेरे आने वाले सारा दिन लोगों की राह तकते हुए खाली हाथ जाने लगे। मजदूरों ने शिकवा किया कि शहरी अब सड़क किनारे बैठे मजदूरों से काम कराने के बजाय अपने जान पहचान वालों से ही काम करा लेते हैं। हालांकि फुटपाथ पर बेहतरीन कारीगर मौजूद हैं। ईद भी जैसे तैसे गुजारी है। ईद के हवाले से सबको पता है महंगाई है, ख़ास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है हमारा जो तामीरात का शोबा है वो शदीद मुतासिर है। काम सारा ऑनलाइन हो गया है। हम लोग यहाँ पे जो मजदूर वगैरह तबका हुनरमंद बैठे हैं,
ये कम तालीम याफ्ता होने की वजह से वो ऑनलाइन से हट गए। मजदूरों का कहना है कि गुर्बत और मोबाइल फोन ना होने के सबब फुटपाथों पर सिर्फ वक्त ही ज़ाया हो रहा है। कैमरामैन ज़िशान नवाब के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए एहतमाम आज मलेरिया से बचाव का आलमी दिन मनाया गया। माहिरीन ने कहा कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से मलेरिया से बचाव मुमकिन है। राबेल अशरफ की रिपोर्ट। हिफाजती तदाबीर अपनाएं, मलेरिया से खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। मलेरिया एनोफ्लीस नामी मादा मच्छर के जरिए फैलने वाला मुतादिद मर्ज है, जिसका जरासीम इंसानी जिस्म में दाखिल होकर जिगर के खलियों पर हमला आवर होता है। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो मादा मच्छर से फैलने वाला मलेरिया किसी की भी जान ले सकता है। मलेरिया एक किस्म के पैरासाइट प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। जब मच्छर काटता है तो प्लाज्मोडियम इंसान के खून में शामिल हो जाता है, जो जिस्म में मलेरिया फैलने के बायस बनता है। खून में शामिल होने के बाद ये जिगर की खलियों में पहुंचता है, जहां उसकी तादाद बढ़कर फट जाती है और फिर ये खून के सुर्ख खलियात को ख़त्म करने लगता है। मलेरिया की इब्तदा में सर्दी, छींके, बुखार, कपकपी, बार बार पसीना आना, कमर और जोड़ों में दर्द, सर दर्द, शदीद थकन, कै, खांसी और नज़ले जैसी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर्स ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा देते हुए कहा कि सफाई सुथराई का मुकम्मल ख्याल रखें, घर में पानी जमा ना होने दें, घर और दफातर में मच्छर मार दवाई का स्प्रे करें। बॉटम लाइन यही है कि हमारे यहाँ दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। बदकिस्मती ये है कि हम हमेशा बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो अब मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियां तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम मच्छर को ख़त्म कर दें तो बात ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह मैं कहता हूँ कि साफ़ पानी मुहैया करें तो बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, ई, कॉलरा, गैस्ट्रोएंटराइटिस सब ख़त्म हो जाएगा। हर साल दुनिया भर में मलेरिया के 20 करोड़ जबकि पाकिस्तान में 10 लाख केस रिपोर्ट होते हैं। मलेरिया पाकिस्तान में फैलने वाली दूसरी आम बीमारी है। तिब्बी माहिरीन का कहना है मलेरिया की तशखीस के बाद अगर बर वक्त इलाज करवा दिया जाए तो इससे बचाव मुमकिन है। राबेल अशरफ, सिटी 21।